سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احسان علی اتاری خاران پٹی سے بلوچستان۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ظاہری دور مبارکہ میں جو نابینا پیدا ہوئے کیا وہ صحابی کہلوائیں گے؟ ظاہری دور کے بجائے کہ ظاہری حیات، ظاہری حیات لبے دور تو یہ بھی ان کا ہی ہے سرکار کا، لبے بالکل اب کوئی نبی تو نہیں ہے گا نا، انہی کا زمانہ انہی کا دور ہے۔ تو ظاہری حیات مبارکہ میں بے شک اگر کوئی نابینا تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، صحابی ہیں، تو ایک لمحے کی صحبت مل گئی، ایمان پہ رخصت ہوا تو وہ بھی صحابی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں پنجاب سے تشریف لایا ہوں ادھر، تو تقریباً 3 ماہ سے میں اور میری بیگم آپ کے طالب ہوئے ہیں۔ اسی دن سے میں نے نیت کی تھی کہ میں آپ کو جا کے دیدار کر کے آؤں آپ کا ادھر، تو میں انشاءاللہ 3 روزہ قافلے میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ہیں 2 ادھر پنجاب میں پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں جیسے میں نے اپنے آپ کو ادھر آپ کے پیش کیا ہے، میرے بچے بھی مدنی جو ہے نا اس کے دائرہ رہ کے وہ تعلیم یافتہ ہو سکے۔ اللہ کرے ماشاءاللہ۔ آپ انفرادی کوشش کرتے رہیں، وہاں اجتماع وغیرہ میں اس کو لیتے آئیں، جی مدنی چینل گھر میں چلے، صرف مدنی چینل چلے، جی گناہ ورے چینل نہ چلے، تو اللہ کرے گا تو جلدی ان کا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو میرے بھائی ہیں ساتھ ان کے لیے ذرا دعا کے لیے آپ کو ریکویسٹ کروں گا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ پیارے باپا جان، میں عبد الرؤف اتاری جرمنی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ باپا جان، سب سے پہلے جو ہمارے شامی مبلغ شیخ محمد القصیر، شیخ محمد بادیج کی بازنجکی جانتا ہوں میں، اور اسید بھائی اور کافی اسلامی بھائی ماشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے۔ علیکہ وعلیکم السلام، میرا بھی ان سب کو سلام انشاءاللہ۔ تو پیارے باپا جان، ماشاءاللہ بلال مدنی بھائی، اویس مدنی بھائی، اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں باپا جان۔ آپ کا نام؟ عبد الرؤف اتاری۔ عبد الرؤف، میں نے صوتی پیغام دیا تھا، جی وہی ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ باپا جان، مجھے ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، اللہ اللہ پاک آپ کو شفا کامل عاجل ہمت رکھے۔ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید امیر اہل سنت محمد سلیمان رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن درجہ رابعہ سے حاضر بارگاہ ہوں. سید امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مرشدی، جب کوئی اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہوتا، اور جب اس اسلامی بھائی کی شادی کرنے کا وقت ہوتا ہے تو والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی ماحول کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح ترکیب بنائی جائے. والدین کو انفرادی کوشش کی جائے، والدین پر کیا کر سکتے ہیں، بغاوت تو کرنے سے رہے. ہمت رکھیں ہم اور انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں کہ احسان ہو کہ ماڈرن ہوگی تو آپس میں بنے گی نہیں، پھر خاندان کی بدنامی ہوگی، خدا نخواستہ نہیں بنی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد وقاص اتاری ہے اور میں شیخ پاک وارسی کا بنا شیخ پورہ پنجاب سے پاکستان سے حاضر ہوا ہوں ادھر. جی آیا نو. میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مدنی منی کا نام تحریم رکھنا کیسا، اور اس کے براہ کرم معنی بھی بتا دیجیے. تحریم مانے حرام کرنا. نام تو ایسے سے رکھتے ہیں، بعض تو بتا رہے تھے کہ اسے غلط معنی والے نام رکھتے ہیں. خناس، قرآن سے نام یہ سمجھتے ہیں کہ نکالتے ہیں، تو شیطان کا لفظ بھی ہے قرآن میں، فرعون کا لفظ بھی ہے، حامان کا لفظ بھی ہے، تو ابو لہب کا بھی ہے. تو معاذ اللہ یہ ہے. تو قرآن سے نام نہیں نکالا جاتا، یہ غلط طریقہ ہے. نام مطلب یہ کہ بزرگوں کے نام پر رکھے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے برکت کے لیے. تو یہ اچھے معنی آپ جس کے بنتے ہو تو یہ نام رکھنا ضروری ہے. کیا نام رکھا ہوا ہے؟ اللہ پہلے پتہ نہیں تھا باپا جان. نہیں تو اس نام کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جی باپا. ایک تو حرام حلال کے مقابلے پہ ہوتا ہے، جی باپا. ہے نا، حلال کی ضد الٹ حرام. جی باپا جان. اور حرمت سے بھی بنتا ہے کہ نا، جیسے محرم الحرام تو یہ حلال کی اس سے نہیں ہے. محرم الحرام میں حرمت والا مہینہ. تو یوں مطلب یوں تعویل تو بن سکتی ہے. تعویل کیا بلکہ سیدھے سیدھے معنی ہی بنتے کہ نہیں، یہ ناجائز نام تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو. جی باپا. واللہ اعلم بالصواب. تو رہنے دے پھر وہی نام جو ہے. دل نہیں ٹھکتا تو چینج کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. حرج کیا؟ چلو ٹھیک ہے. اچھا سا نام کوئی صحابیات کے اس پہ ولیات پر آپ عطا فرما دیں. مدنی فیس میں تو لوں گا. باپا جان میں 12 روزہ نا مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوا ہوں، اور پیچھے سے تو مجھے پتہ نہیں، اجازت یہی بڑی مشکل سے ملی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں کوئی مدنی فیس ہے تو میں آپ سے وقت نہیں دینا، مدنی حلیہ دے دیں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے انشاءاللہ. لبیک. ماشاء اللہ. آقا کی سنت سجا لیں، جو توبہ بھی کر لیں، جب تک کٹوائی منڈائی چلتے رہیں. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ. میں اس بات کو آپ کے دل سے مانتا ہوں، تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ چہرے پہ ہاتھ پھیر دیں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں یقین کرو میں یہ احسان آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گا. آپ کا غلام، آپ سے گزارش ہے اس پہ کرم کر دیں. اور کس کس کو چہرے پہ ہاتھ پھروانا ہے؟ یوں نہیں آنکھیں بند کر کے یوں کر دوں میں. بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد معظمہ تاری ضیاکوٹ سے. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نفلی چندہ یا نفلی صدقہ سے کیا مراد ہے، اور یہ کن کو دے سکتے ہیں؟ صدقات نافلہ وہ جو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ویسے جو آدمی کسی کو خیرات جیسے دے دی وہ بھی نفل صدقہ. مسکرانا بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے ہے تو اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. بہت صدقے کی بہت قسمیں. یہ سب
नफल सदक़ात, माली तौर पे भी जैसे मैंने कहा मस्जिद के चंदे में डाल दिया, दावत इस्लामी को वैसे ही डोनेशन दिया, ज़कात वगैरह नहीं, ये सब नफली सदक़ात है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपके बारगाह में यही सवाल अर्ज है कि हमारे गांव में जो है ना पर्दे का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जो है ना 5-6 कमरे घरों के बने हुए होते हैं, उसमें जो है ना देवर भाभी सारे इकट्ठे रहते हैं और गांव वाले भी वो जो है ना सारे आना जाना, ये मतलब कि सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को कैसे हम जो है ना ख़त्म करें उसको। और पहले जो थे उसमें बिल्कुल तालीम वगैरह नहीं है, अभी जो है ना दावत इस्लामी का माहौल मिला है, कुछ जो है ना आस्ता आस्ता माशाल्लाह सेट हो रहा है। अभी बाबा जानी कोई ऐसा कोई तरीका जो है ना पूरे सिस्टम को कैसे जो है ना सेट करें। ये बेटे यहाँ भी है जी बाबुल मदीना सुधरा हुआ शहर, आपको लगता होगा देवर भाभी का पर्दा तो बहुत मुश्किल है। दावत इस्लामी वालों जो कहलाते हैं ना अपने आप को, इनके घरों में भी मसाइल होंगे इसके देवर भाभी के। इसको बस वो आहिस्ता आहिस्ता, अब पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब है जी, वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ें और कम से कम अपने घर वालों को प्यार से मोहब्बत से समझाएं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो समझाने से काम चलेगा। एकदम से मुखालफत करेंगे ना तो ये दावत इस्लामी काम नहीं करने देंगे आपको। आहिस्ता आहिस्ता समझाया जाए मोहब्बत से प्यार से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि 3 दिन के मदनी काफ़िले का एक्सपीरियंस रहा, उसमें ट्रेन में हम सफ़र करके गए थे तो बाज़ औक़ात देखा जा रहा था कि कुछ अफराद ट्रेन से उतर कर नमाज़ अदा कर रहे हैं और कुछ ट्रेन ही में पढ़ लें। तो ऐसा करना कैसा, ट्रेन में नमाज़ पढ़ लेना चलती ट्रेन में तो नमाज हो जाती है, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह। चलती ट्रेन में फ़र्ज, वित्र और सुन्नत फज्र नहीं होते। ये जब ट्रेन बिल्कुल रुक जाए ना तो ट्रेन में अब पढ़ सकते हैं या फिर उतर के पढ़ें। अगर वक्त जा रहा हो तो फिर ट्रेन में भले पढ़ लें और बाद में जब मौका मिले उतर कर या उसी दौरान मौका मिले तो दोबारा पढ़ लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मोहम्मद उवैस रज़ा अत्तारी फ़ैज़ान बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह से हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है, ये सवाल पेश करना चाह रहा था। 2 दोस्तों के अंदर मोहब्बत बढ़ी, एक के वहाँ औलाद नहीं थी तो दोनों ने अहद किया, आपस में मुशावरत हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे बेटा दे, बेटी दे, वो मैं आपको दे दूँगा। तो ऐसा ही हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें औलाद से नवाजा तो उसने अपने दोस्त को वो बेटा पैदा हुआ उसको दे दिया। तो पैदाइश से ही चंद दिन कबल जिसके यहाँ बेटा पैदा होना था उसका इंतकाल हो गया। तो जैसा कि उसने वसीयत की थी वो बेटा उनको दे दिया गया। तो अब उसका जो बच्चे का नाम था वो किस वालिद के नाम पे रखा जाएगा? वालिद तो असल वालिद के नाम पर रखा है, चाहे वो जिसको बेटा दिया वो जिंदा रहे तब भी बाप का नाम बदली नहीं होगा। बल्कि ये बाप जब फौत होगा ना असली बाप, तो उसको इसका तरका भी मिलेगा, विरसा जो है वो भी मिलेगा। बाप बदली नहीं होता, बाप एक ही होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ग़ुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी बलूचिस्तान सोबतपुर से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में मेरा सवाल है, मिसाल के तौर पर किसी की औलाद है, वो एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाता है तो उसका बच्चा 6 साल का है, वो उम्र 3 साल लिखवा दे अगर, तो क्या ये जायज़ है? अपने आप से पूछें ये जायज़ है? झूठ बोलना, झूठ भी बोला, धोखा भी दिया, अरे गलत है, गुनाह का काम भी। आपकी बारगाह में एक और अर्ज़ है, तो ये जिस्म पर फोड़े जिसे इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं, तो बहुत से डॉक्टरों को ये दिखाया, मेरे भाइयों को भी यहीं सीने पर, तो इसके लिए रूहानी इलाज निशानात, हाँ ये
मदनी फूल फरमाइए। अल्लाह ताला शिफा अता फरमा प्यारे हबीब के सदक़े में अल्लाह करम कर दे। उसके लिए ये कि चलते फिरते उठते बैठते या सलामो पढ़ते रहे रोज़ाना, या सलामो 111 बार पढ़कर पानी पर छू करके पी लिया करें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर नात ख़्वां सैयद फरहान क़ादरी अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, बाबुल मदीना कराची से। माशाअल्लाह। हुजूर अपने बारे में अर्ज़ करना था कि छोटा सा था, 3 साल का, तो टाइफाइड बुखार हुआ, अल्लाह, जिसकी बिना पर आँखों की, दोनों आँखों की बिनाई जा चुकी थी। हाँ, और बहुत इलाज करवाया, कहीं से भी मुझे इसका आराम ना हो सका, और ऑपरेशन भी हुआ। जिसने मुझे जो बताया मैं वहाँ गया, लेकिन आज फिर एक दिल ने रास्ता बताया, जो रास्ते में मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त अपने मुर्शिद के सामने। सिर्फ अर्ज़ ये करना था कि आप अपने मुबारक हाथों से सिर्फ आँखों के लिए दुआ फरमा दें बस। अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए, प्यारे हबीब के सदक़े में रहमत की नज़र हो आप पर, अल्लाह करम फरमा दे। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। ये जो मैंने शेर सुना है इसमें बड़ी तसल्ली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जवाब था इनका, तसल्ली से तो दुनिया का निज़ाम चल रहा है। कोई तसल्ली देने वाला ना हो तो लोग, जैसे किसी यहाँ मैयत हो जाए तो ताज़ियत करना सुन्नत है, क्या है, तसल्ली तो होती है। कोई पूछे ही नहीं मरने वाले को, कोई जनाजा ना उठाए, कोई ताज़ियत करने ना जाए, तो रो के मर जाएंगे। इसके अजीज़ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चियाले पापा जान हर मेरे बड़ा है। अल्लाह व बरकातुह। चियाले पापा जान हर मेरे बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। तबीयत ठीक है? अब शर्रे कहूँ तो ये बोलेंगे शर माने बुरा, आप खुश हो जाएंगे। शर्रे, इस शर ये अच्छे को बोलते हैं। तबीयत ठीक है? अब मैं समझ रहा हूँ क्या, ये तो बिल्कुल आसान उर्दू में बोल रहे हैं। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। वो शर्रे बोलते ना अच्छा हूँ, आमतौर पर ये बोलते ठीक हूँ, मर रहे तो बोलते ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। प्यारे पापा जान बारगाह में सवाल है कि नमाज हालत लफा गेस्टर मजक की पता याद भी है कि मैं वजू न अग्गा ते सफ़ाएँ और मुस्का ते सफ़ाएँ हमाया गेस्टन को छे करेंगे। पहली सब में वजू टूट गया नमाज में, अब उसमें नमाज के दौरान जैसे वजू टूटा किसी के जमात में, तो उसका तो लिखा है कि नाक पर हाथ रख के निकल जाए। तो नाक पर हाथ रखने से वहाँ इशारा ये है कि इसकी नक्सीर फूट गई है। लेकिन अभी आवाम तो इस दौर में तो नहीं समझेगी कि नाक पर हाथ नहीं रखा। अब लेकिन है मसला ये कि वहाँ सफ टूटेगी अगर नहीं निकलेगा तो। अब निकलेगा तो वो दूसरों के लिए मसला है कि वो सड़क के वो गैप पूरा कर ले, लेकिन आवाम पूरा भी नहीं करेंगे। अब तो हालात ही ऐसे के मसाइल तो लोगों को पता ही नहीं है। निकल जाए, क्योंकि अगर ये रहेगा ना इसमें तो इसकी सफ कता होगी, सफ टूटेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्ते को खुला कितना रखना चाहिए? सही है, ढीला ढाला होता अपना ये कली वाला। नहीं, इसकी कोई फरमाइश भी है कि बस जितना मर्जी रखवा लें? अब देखो ना, कोई तो होता जबलुल लहम, किसी की अपनी साइज, तो उसको हमारा कुर्ता जो है ना उसमें फंस जाएगा बेचारा, तो उसका लूज हो, और अगर वो हम उसका पहन ले तो हम ढक जाएंगे बिल्कुल, समझे, बुरके में बंद हो जाएंगे। बस में ज़रूरत ही हो, मतलब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अबू हामिद अहमद रज़ा तारी, दरजा साबिया, मरकज़ी जामिअतुल मदीना, बाबुल मदीना, कराची। पापा मेरा सवाल ये है कि आपने गुज़िश्ता दिनों मदनी मुदाकरे में फ़रमाया था कि जब जुलूस में शिरकत फ़रमाएँ तो हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के महल मुबारक का तस्वुर बांधें। पापा वो तस्वुर कैसे बांधा जाए? आया आजकल वो वहाँ पर जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसका तस्वुर बांध लिया जाए? हाँ, ये होगा तो इसी का तस्वुर। असल मकान आली शान
किस तर्ज का बना हुआ था, अब वो तो कोई नक्शा अपने पास है ही नहीं। तो अगर इस मकान आलीशान का मौजूदा जो इमारत है उसका भी तस्वुर बांधते तो है, लुत्फ तो आता है, सुरूर तो आता है। तो पहले यहाँ हारून रशीद की वालिदा ने गालिबन मस्जिद बनाई थी, फिर अब मौजूदा ये है कि वहाँ एक वो दारुल मुताला बना दिया गया है मस्जिद को शहीद करके। इस वक्त सूरत हाल ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम जाहिद सदीक अतारी है, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से हाज़िर हूँ आपकी बारगाह में। प्यारे मुर्शद, आपका जो मदनी चैनल है इसने बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। हम तो समझते थे कि हम ऐसे ही अपनी कब्र में चले जाएंगे कुछ सीखे बगैर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से काफ़ी चीज़ें सीख ली और मदनी काफ़िले में भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखने का हमें मौका मिला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं हैदराबाद से आया हूँ 12 दिन के काफ़िले में। पापा जान, अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मुझे डेंगू हो गया था और समझ लो कि पता नहीं था कि मैं बच पाऊँगा नहीं बच पाऊँगा। तो अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी, तो मैंने वहाँ पर ही नियत की थी कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं अकेला उनके 12 दिन के काफ़िले में यहाँ पर आ जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो पापा जान, मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिले। यहाँ पर मैं यानी कि आप जैसा बनना चाहता हूँ और नेक बनना चाहता हूँ। मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। मैं मूवी मिक्सिंग का काम करता हूँ, गाने भरना मूवियों के अंदर, और बहुत यानी कि ऐसी गुनाह वाली ज़िंदगी थी मेरी कि बस अल्लाह ने मुझे समझो एक चांस दिया है, तो मैं कुछ नेक काम करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ। माशाअल्लाह, जी आया नो, माशाअल्लाह, अच्छे आए आप। और अब सच्ची तौबा करके कोई आसान हलाल रोज़गार अल्लाह करे आपको मिल जाए। और अब यह कि यहाँ 12 दिन के लिए तो आपको मदीना दिन को भी कुछ ना कुछ मदनी तरबियत गाह वालों से सीखते रहें। यहाँ हल्के वगैरह दिन के भी तरकीब तो होगी मेरा ख्याल है ना, तो उसमें शिरकत करें। और बस वो वक्त अपना ये 12 दिन का मिला, इसको अब फिर अल्लाह तौफीक दे तो मज़ीद आगे मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में हाज़िरी देते रहें। इंशाअल्लाह ये अपनी इस्लाह होती रहेगी। और 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स अगर कर लेना आप, मदीना हो जाएगा। इसके बाद 12 दिन के बाद कोई सी अगर घर में मजबूरी नहीं है तो 63 दिन का मदनी कोर्स, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। पापा जान, मेरे लिए दुआएं करना कि मुझे अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। अल्लाह इस्तिकामत, हिम्मत रखें। अल्लाह का शुक्र है कि आपका डेंगू चला गया। बेटे आपका नाम क्या है? कामरान। चलो भाई, इनको नाले पाक का नक्श तो फिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज इस उम्मत के अंदर नफ़रत क्यों है? हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? आज इस उम्मत के अंदर मोहब्बत कैसे पैदा हो जाए? इसका तरीका यह है कि नेकी की दावत आम की जाए। हर फर्द अपनी जगह पर नेकी की दावत देना शुरू करेगा, नमाज की दावत देना शुरू करेगा, सुन्नत पर अमल करने की दावत देगा, इश्क़ रसूल की दावत देगा। तो इंशाअल्लाह जब ये नेमतें उसके अंदर आएंगी, रूहानियत पैदा होगी और नफ़रत जो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं पंजाब से आया हूँ, सूट शहर से, हज़रत बाबा बुल्ले शाह की नगरी से। बाबा जान, मैं आपका बैत होना चाहता हूँ, मेरे बचपन की ख्वाहिश है। तो मैं सुबह दुबई जा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिल की हसरत सी आज मैं आपका बैत हो के सुबह दुबई में जाऊँ, अपने दोस्त को बताऊँ मैं बैक हो गया हूँ। हाँ, मैंने आपको बेटे सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया में दाखिल कर लिया, आप मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। बाबा जान, मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक, मैं बहुत गुनाह किए हैं। आप दुआ करें मैं नेक हूँ और ये लबाद बहन मदनी।
चलो ये पहली बार तशरीफ लाए, इनको भी तोहफा दे दो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमामे के क्या फ़ज़ाइल हैं? पापा जी से गुजारिश है कि मुझे इमामा अपने हाथों से सर पे सजवा दें। इमामे की क्या फ़ज़ाइल है, पूरी किताब है इमामे के फ़ज़ाइल पर, मकतबतुल मदीना की। अहम फजीलत यह है कि ये आका की सुन्नत है, इमाम शरीफ। आप खुद ही बांध लो बेटा। 2 महीने पहले छत गिरने की वजह से मुझे काफ़ी चोटें आई थी, तो उसकी वजह से अब पसलियों में बहुत दर्द रहता है, उसके लिए कोई अच्छा वज़ाइफ बता दीजिए। अल्लाह को शिफा अता फरमाए। इसमें ऐसा है कि या गनियो ये पढ़ता रहे, और या मुगनी 3 बार पढ़ के, या मुगनियो 3 बार पढ़ के छू करके दर्द की जगह पे मल ले। अल्लाह को सेहत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शकील अहमद अत्तारी पाक गौरी काबीना गुजर खान से मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। या सैयदी, जब शुरू में मदनी माहौल में आए तो मदनी इनामात पे अमल का जज्बा बहुत ज़्यादा, मगर वक्त गुज़रने के साथ ज़िम्मेदारियाँ या दीगर मदनी कामों में तो नेक बनाने की धुन में खुद नेक बनने की ये जो उसमें गफलत होती गई। सैयदी करम फरमा दीजिए, कुछ मदनी पूरा अता फरमा दीजिए कि ये बयानात और जदवल और मदनी मशवरों के इस तरकीबों में अपनी इस्लाह और ये भी नेक होना है, ये भी नेक होना है कि अपने आप को नेक नहीं समझता, ने अपने आप को नेक ना समझना भी नेक होने का एक जुज है। और जिस दिन अपने आप को नेक समझा ना, उस दिन गया काम से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बुजुर्गान दीन की सीरत का जब मुतालिया करते हैं, जिस तरह हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तौबा से कबल मशहूर डाकू थे, और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी तौबा से कबल ये एक कनीज़ पर आशिक हो गए। मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी तौबा से कबल ये एक कनीज़ पर आशिक हो गए थे। इसी तरह दीगर हैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत इब्राहिम बिन अदम। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि यानी ये हज़रात जब तौबा करते थे तो इनकी तौबा कैसी हुआ करती थी कि ये देखते ही देखते विलायत के आला मर्तबे पर फाइज हो जाते थे। तो बापा तौबा हम भी करते हैं, तो इनकी और हमारी तौबा में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। उनकी तौबा वाकई तौबा होती थी, नदामत भरी। हमारी तौबा अक्सर नुमाइशी होती है या रस्मी होती है। अल्लाह करेगा हकीकी तौबा नसीब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बड़े हौसले से व बरकातहू। हिम्मत नहीं थी बात करने की। सियालकोट से आया हूँ 12 दिन के कहाँ से? सियालकोट से, जियाकोट से माशाअल्लाह। 12 दिन के काफले में आया हूँ। नाते पढ़ने का शौक़ है सरकार की, लेकिन घबरा जाता हूँ, जैसे अभी घबरा रहा हूँ। तो इनाम भी दीजिए, इनाम का नाम जो आपके दे रहे हैं मुझे भी दीजिए ना कोई इनाम। शुक्रिया, मेहरबानी। आप पे 12 माह दे दें, मैं आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनाम दे दूँ। 12 माह 25 माह, अब तो दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। तो सफ़ेद ही है सारी। अभी तो 12 दिन पूरे करके जाऊंगा वापस सियालकोट में। यहाँ कर बाबा सदाई मदीना लगाता हूँ, इधर आ गया हूँ और अभी मक्के की टिकट लेने आया हूँ वहाँ से। मुझे तो ये पता है बस। आज जो है हमारे इलाके में मदनी काफ़िले के हवाले से मदनी मशवरा था, क्योंकि 11 और 12 रबीउल शरीफ 2 दिन इस दफ़ा छुट्टी है, इतवार और पीर 2 दिन की। तो काफ़ी सारे ज़िम्मेदार इस्लाम में जमा हुए और 3 दिन के मदनी काफ़िले की तरकीब पर मशवरा हो रहा था। तो कुछ ज़िम्मेदारान ने उसमें अपनी ये राय दी कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो
11ویں رات جو بڑی رات جو آئے گی 12ویں رات اور 12 کا دن منانے کے لیے دنیا بھر سے باب المدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں باب المدینہ چھوڑ کر جو ہے کراچی سے باہر مدنی قافلے لے کر جائیں. تو کافیوں نے یہ رائے دی کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو دن ہے اس کو کراچی میں رہ کر ہی فیضان مدینہ میں رہ کر ہی گزارنا چاہیے، اور جب یہ ایونٹ گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے مدنی قافلے کی ترکیب کرنی چاہیے. تو بابا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. تو مدنی مشورہ تو ختم ہو گیا آپ کا، اب کیسے ہوگا؟ نہیں تو ذمہ دار آپ ان کو بولتے کہ اب تو زیادہ جانا چاہیے، دنیا بھر سے تو ان کی جگہ خالی کرنی ہے تاکہ یہ آ کے بیٹھے ہیں. ہم قبضہ کر لیں گے تو یہ بیچارے کہاں بیٹھیں گے؟ ہم تو چند سال سے دے رہے ہیں کہ اسلامی بھائی دوسرے شہروں میں گاؤں گوٹھوں میں جا کر مدنی قافلوں کے ساتھ وہاں جشن ولادت منائیں، وہاں جھنڈے لے رہے ہیں، وہاں جگمگ جگمگ ہو. یہاں تو ہے سب الحمدللہ بہت جگمگ، تو ہر جگہ چمکانا ہے. تو جانا وہاں ان کو انشاءاللہ وہ سنبھالنے والے بہت ہیں، غیر ملکی آئیں گے تو جزاکم اللہ خیر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فکر مدینہ مدنی انعامات کا رسالہ جیب میں ہوتا ہے، مگر روزانہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ نہیں ہو پاتی. برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ کیسے روزانہ فکر مدینہ کی ترکیب ہو جائے اور مدنی انعامات کا عامل بھی بن جاؤں. میری والدہ کے لیے بالخصوص دعا فرما دیجیے. اس کا مدنی گلدستہ ہی دے دوں آپ کو، 12 دن کا مدنی کورس. نہ کیا ہو تو یہ کر لیں، اور پھر ہر 92 دن میں ایک بار کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہاں فکر مدینہ بھی ہو جائے گا اور ذکر مدینہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ